ओके सी स्टूडेंट, वी हैव डन विद दिस सर्वे मेथड। हम लोगों का सर्वे मेथड हो चुका है। सो व्हाट आर ऑल थिंग्स वी हैव सीन? वी हैव सीन द सर्वे मेथड, देन वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सब हम लोगों ने देखा टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। व्हाट आर ऑल मेथड्स वी कैन यूज, दैट ऑल वी हैव सीन their benefits and their disadvantages, then how can we use it in our research। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि जब हमें प्राइमरी डेटा के बारे में, जब when we are planning to collect the data through the primary sources, तो क्या क्या मेथड रहते हैं कि जिसके थ्रू वी कैन कलेक्ट द डेटा, दैट ऑल वी हैव सीन। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने एक चीज नोट की रहेगी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द प्राइमरी डेटा, सो दे ऑलवेज से कि क्वेश्चनर बनाना है। ओके, तो क्वेश्चनर बनाना है मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना के रखना है, और जो सारे रिस्पोंडेंट को आप सेम क्वेश्चन ही करोगे। ओके, सो दैट वी हैव सीन। तो ये क्वेश्चनर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और उसको कैसे बनाना चाहिए, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। So today we will going to see this part here, what exactly the questionnaire is and how we will going to use it। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है because all of you in your research project of semester 6 will going to use this method। आप लोग ये मेथड को, आप ये क्वेश्चनर को बनाने ही वाले हो, इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चनर क्या रहता है। Okay, so let's start here। So questionnaire as a technique of data collection for information collection for information collection through survey, a tool or instrument is commonly used called questionnaire, also called survey instrument। It is a comprehensive list of questions to be asked to respondent for specific information to be collected। Questionnaire acts as an instrument for collecting uniform and comprehensive information। Such questionnaire is prepared before conducting field survey। It needs to be prepared properly so that all required information will be collected from the respondent and the conclusion drawn will be reliable। Questionnaire is normally treated as a tool rather than a method of data collection। Questionnaire is used when data are collected through personal interview or through telephonic survey or through mail survey। Questionnaire is a well-planned list of questions prepared by the researcher for the information and reference of interviewer। He has to ask a question to respondent as per the questionnaire and note the answer information supplied by the respondent। In this case, in this sense, it is one major tool of data collection in business, marketing, research। It is also used extensively in the social science research, particularly in survey। See what we have understood। ठीक है, चलो ये भी कर रहे थे, फिर बाद में हम लोग मीनिंग के पास जाते हैं। Then questionnaire is a fairly reliable tool for gathering data from large, varied, and scattered group। It facilitates the collection of objective and the quantitative data। Even information of a qualitative nature can be collected through well-drafted questionnaire। Questionnaire is used in combination with other techniques such as observation। In population census, for example, the investigator interviews the householder and asks specific question from a schedule। Okay, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि क्वेश्चनर एक ऐसा मेथड है कि जो हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए हेल्प करता है, और क्वेश्चनर में हम लोग ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के रखते हैं, सो दैट ये इंटरव्यूअर के लिए इजी रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं करके। ओके, आपका भले ही कितना अच्छा नॉलेज हो टॉपिक के बारे में, वॉट एवर इट इज, बट एक साथ पूरे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन ध्यान में रखना और सेम क्वेश्चन हर एक को पूछना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप लोग क्वेश्चनर नहीं बनाओगे तो मतलब क्या होगा, किसी एक को मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और दूसरों को मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैं भूल गया करके। सो दैट थिंग कैन ऑल्सो गेट हैपन व्हेन यू आर स्टार्टेड कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा थ्रू द क्वेश्चनर। तो इसके लिए क्या रहता है कि हमें वो लिखना पड़ता है कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, एंड देन अगेन बस क्वेश्चन पूछने हैं वहां तक ही रोल खत्म नहीं होता है। इट विल बी वॉट एवर रिस्पॉन्डेंट आर गिविंग आंसर, उनका क्या रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, दैट ऑल्सो वी नीड टू नोट इट डाउन। ओके, वो भी हम लोगों को लिखना पड़ता है कि ठीक है क्या है, इनने उन्होंने क्या किया, बाकी दूसरे ने क्या कहा था। सो दैट वे वी नीड टू नोट इट डाउन। ओके, तो अब बोले कि मैम लेकिन ये इतने सारे, हम लोग लिटरली 100-150 लोगों से बात करेंगे, सबका रिस्पॉन्स लेंगे, उसके बाद में क्या रहेगा, मतलब उससे क्या पता चलेगा। देखो उससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी सेट अप क्वेश्चन हर एक के लिए सेम 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 क्वेश्चन पूछ के रखे। ओके, और हले वहां पे हर एक का अलग रिस्पॉन्स रहेगा। तो आपको वहां पे एक आइडिया आ जाएगा जब आप उसको एनालाइज करोगे मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो रिस्पॉन्डेंट चूज किए
आपको उनका इनकम लेवल भी जानना है कि व्हाट इज देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम में जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पोंडेंट रहेंगे, मंथली इनकम में उनका इनकम अलग अलग रहेगा। जैसे हाउस वाइफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो उनको घर पे कितना पैसा खर्च किया जाता है, उनके हाथ में पैसा मिलता है नहीं मिलता है खर्चा करने के लिए। तो दैट वी सपोज वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, तो किसी लेडी के पास 2,000 मिलता रहेगा महीने का, किसी को 5,000 मिलता रहेगा महीने का खर्चा करने के लिए, किसी को 10,000 मिलता रहेगा। तो वहां पे क्या होता है कि डिफरेंसेस, तो मेजोरिटी हाउसवाइफ को कितना पैसा मिलता है। तो आपने अगर 100 लोगों में से बात किया, तो 100 लोगों में से आपको ऐसे पता चला एनालाइज करने के बाद में कि 50% हाउसवाइफ को 10,000 रुपया मिलता है घर खर्चा चलाने के लिए। ओके, देन यू अंडरस्टूड कि 10,000 इज द व्हाट वी कैन से द बेस, मतलब इतना पैसा तो हर एक के पास होना चाहिए। मैक्सिमम लेडीज आर एबल टू गेट 10,000 in their hand monthly, then only it is possible for them to do all the things conveniently and satisfy all the needs of their family member. Okay, so that with the questionnaire will going to help you out कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी, इंफॉर्मेशन को व्हाट वी कैन से डिवाइड करने के लिए भी, क्लासिफाइड करने के लिए भी, और उसके उसके थ्रू प्रॉपर कंक्लूजन को आने के लिए भी क्वेश्चनर आपको हेल्प करेगा। आपको समझा ना स्टूडेंट, क्यों क्वेश्चनर बनाना चाहिए करके प्राइमरी डेटा में? समझ रहे हैं नहीं? यस और नो? यस मैम। है ना, आप जाके ऐसे भी ओरली भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा ठीक है, हाँ क्या है आपका इनकम, है ये क्या है वो क्या है, लेकिन एक दिन में आप 20 लोगों से बात करोगे, लेकिन जब वो 20th पर्सन रहेगा, जो लास्ट वाला पर्सन रहेगा, उसके पास जब आप जाओगे, उसके बाद में आपके जो सेकेंड एंड थर्ड रिस्पॉन्डेंट थे उन्होंने क्या आंसर दिया था ये आप भूल जाओगे। ओके, तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मेक द क्वेश्चनर, वी शुड सेट द क्वेश्चनर and we should note down their responses also. Therefore, it is very much important in the primary data collection that we need to prepare the questionnaire to collect the data. Okay, now let's start with the meaning and feature of questionnaire. What is questionnaire here? In the field investigation, information is to be collected from the respondent. For this, suitable questionnaire must be prepared by the researcher. This questionnaire, which contains a list of logically arranged questions for data collection, acts as the base for the collection of information. Questionnaire is the most common research instrument, or we can say the tool used for data collection under field investigation. ये generally when you are doing field investigation, that time only it is suitable to have the questionnaire. अगर आप laboratory का मतलब आप experimental कुछ कर रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चनर की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वहां पे भी क्वेश्चनर की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे भी आपको क्या ऑब्जर्व करना है उसका तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, so what are they trying to say here? When we are planning to go with a field survey, it is very necessary that we need to frame the questionnaire, and as per that only we should start collecting the information. Okay, so this is what their base the research. Okay, so questionnaire मतलब आप बोलेंगे मैम हमेशा फेस टू फेस वाला रहेगा तभी हम लोग को क्वेश्चनर बनाना है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। when you are going with the telephonic survey also, still you have to ready with the questionnaire. when you are going with the mail survey, मेल सर्वे कर रहे हो मतलब आप किसी को पोस्ट कर रहे हो, तभी भी आपके पास क्वेश्चनर होना चाहिए। ओके, so by any way when you are collecting the information from the same category of the respondent, you have to prepare with the questionnaire. ओके, so जरूरी नहीं कि सामने सामने इंटरव्यू लेंगे तभी क्वेश्चनर चाहिए, नहीं। तो आप ये इवन मेल सर्वे के थ्रू, जैसे मैंने आपको अभी सजेस्ट किया है कि आप लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करोगे, लिंक क्रिएट करके सबको सेंड करोगे और उससे इंफॉर्मेशन लेना। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि सेट द क्वेश्चनर, प्रिपेयर द हार्ड कॉपी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दैट। ओके, वी विल गोइंग टू सिलेक्ट द टॉपिक विच विल बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू, कि आपको वो हार्ड कॉपी बनाने का पैसा खर्चा बचाएगा और आप जस्ट मोबाइल के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। सो दैट वे वी विल गोइंग टू प्लान फॉर योर रिसर्च टॉपिक। लेकिन अगर आपका टॉपिक ऐसा है दैट देयर आर नो चांसेस दैट योर रिस्पोंडर मे गोइंग may not like they may not be having mobile phone also, तो उस टाइम पे यू नीड टू बी रेडी विद द हार्ड कॉपी। आपको एक प्रिंट निकालना ही पड़ता है, देन ओनली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द हार्ड कॉपी। ओके स्टूडेंट, तो ये रहता है तुम्हारा क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर मतलब कैसे रहते हैं, एकदम लॉजिकली अरेंज रहेंगे। लॉजिकली अरेंज मतलब एग्जैक्टली कैसे रहता है, क्या लॉजिकली अरेंज रहेगा?
लॉजिकली अरेंज मतलब स्टार्टिंग में ही ये नहीं बोलेगा कि अच्छा जैसे अगर टॉपिक है तुम्हारा व्हाट वी कैन से, क्या टॉपिक लेंगे हम लोग, क्या सजेस्ट करोगे, क्या टॉपिक लूँ बताओ मुझे। हाउस वाइफ के बारे में ले ले, फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ हाउस वाइफ। ओके चलो, फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ हाउस वाइफ है, तो मैं वो हाउस वाइफ को मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, आपका क्या सजेशन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या हो जाएगी फिर कंफ्यूज हो, सजेशन मतलब किस बारे में सजेशन बोल रहे हैं ये लोग, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, फर्स्ट हमें उन्हें कंफर्टेबल करवाना है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एजुकेशन, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर, व्हाट योर हस्बैंड इज डूइंग, आर यू वर्किंग समवेयर। मतलब ये लिंक टू लिंक जाना चाहिए कि पहले उनके बारे में बात करो, उसके बाद में उनके सोशल कंडीशन के बारे में बात करो, देन उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करो, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में सिस्टमेटिकली आओ, एंड देन लेटर ऑन आस्क देम अबाउट देयर सजेशन, हाउ दे विल कंक्लूड इट, ऐसा। ठीक है, तो ऑल दिस क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, कि उनको एक क्वेश्चन होने के बाद में दूसरे क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, अच्छा ठीक है ये क्या पूछ रहे हैं करके, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, so that way they should able to understand. Okay, so therefore when you are preparing the questionnaire, it should be logically arranged. आप समझ रहे हो, जैसे देखो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ओके, तो प्राइमरी मेथड डेटा कलेक्शन के बारे में वहाँ पे बात है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि व्हाट इज, डायरेक्टली मैं आपको पूछ रही हूँ कि व्हाट वी कैन से, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड ये प्राइमरी में आता है या नहीं आता, पहले ये उनको पता होना चाहिए। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन वहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट यू मीन बाय द प्राइमरी डेटा। ओके, तो उनको पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा मतलब क्या है। उसके बाद में मैं आपको पूछूंगी कि प्राइमरी डेटा ये है, जैसे कौन सी टाइप्स है कि जिसके थ्रू हम लोग, कौन से वेज है कि जिसके थ्रू हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, एक सर्वे रहेगा, एक वो रहेगा, वो आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा, तो उसके बाद में मैं आपको एक लॉजिकली क्वेश्चन क्या करूंगी कि ओके सपोज आप फील्ड सर्वे कर रहे हो, तो क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर क्या है आपको पता है क्या। ओके, मैंने वहां पे उनको पहले ये कंफर्म किया है, दे रियली नो अबाउट द क्वेश्चनेयर और नॉट। अगर उनको नहीं पता है तो मैं डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चनेयर के बारे में पूछना ही गलत रहेगा कि क्वेश्चनेयर में बताओ मुझे क्या होता है करके, दैट इज रॉन्ग वे। आई शुड able to understand like they know about this word. Okay, if they are saying yes I know about the questionnaire, okay then tell me here how you will going to use the questionnaire in your field survey. आप समझ रहे हो, so this way your questionnaire should be logically arranged, कि दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है उसके बारे में वो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट रहेगा उसको पता होना चाहिए, एंड दैट वे he would be able to give you the answer also. समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, क्या करना चाहिए क्वेश्चनेयर में, यस और नो। yes हाँ ओके, चलो अभी आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे, जैसे मैं आपको क्वेश्चनर के बारे में बात करूँ कि क्वेश्चनर डेटा कलेक्शन के लिए रहेगा, लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन कभी कभार हमें ऐसे फ्रेम करने हैं कि जो डायरेक्टली पूछे या कभी कभार इनडायरेक्टली भी पूछे, तो वैसा भी रहेगा तो भी चलता है क्वेश्चनर में। ओके, तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि एक रिसर्च टूल करके क्वेश्चनर क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या लगता है आपको उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये कैसे तुम्हें एज ए रिसर्चर हेल्प करेगा। जस्ट सोचो कि तुम लोग एक रिसर्चर हो और तुम लोगों ने क्वेश्चनर बनाया है, तो आपको ये क्या हेल्प करेगा आपके रिसर्च में, बताओ स्टूडेंट। यस to collect information from यस, others. हाँ यस वेरी गुड, आपको क्या पता चले यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या रहेगा, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर एज यू सेड, मतलब सेम क्वेश्चन के ऊपर बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट यू विल एबल टू अंडरस्टूड, so that is you will be able to collect the comprehensive information, आपको in detail information मिलेगा। okay, then what will be the next, can anyone tell me here, ये कैसा मेथड है, कन्वीनियंट है या नहीं है कन्वीनियंट, व्हाट डू यू ऑल से, इज इट कन्वीनियंट मेथड टू कलेक्ट द Convenient. इंफॉर्मेशन। यस इट इज, Yes, yes ma'am. it is convenient, very good. Okay, then again geographical area के बारे में आप लोग क्या बात करोगे, क्वेश्चनर बनाने के बाद में is it possible for me to like to cover the wide geographical area, yes No, ma'am. okay,
यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग एक्चुअली कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने क्वेश्चनर नहीं बनाया है तो आपको ये बहुत मैंडेटरी रहेगा कि आप वो जो रिस्पोंडेंट रहेगा उसको मिलके ही आओगे, उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके हिसाब से आप लिखोगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चनर बनाया है और आपको उसको मिलना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन मेल दैट क्वेश्चनर। आप उसको ईमेल करोगे, पोस्ट करोगे, एज इवन यू कैन से आप उसको लिंक क्रिएट करके शेयर करोगे, isn't it? आप उसको टेलीफोन करके सेम क्वेश्चनर पूछोगे, सेम क्वेश्चन पूछोगे। So it means what here? The questionnaire will help you to cover the wide geographical area also. Okay, आशा समझा आपको? Yes, yes, yes or no? Yes, ma'am. हाँ, ओके, बाकी लोग भी आंसर देते रहो। Yes, अभी ma'am. आप लोग मुझे बताओ कि क्वेश्चनर के टाइम पे इज इट सो मैंडेटरी दैट आई नीड टू हैव द फेस टू फेस इंटरव्यू, या फिर मैं अलग तरीके से भी, मतलब मेल करके भी, पोस्ट करके भी उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ? व्हाट यू ऑल से? क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अलग तरीके से भी ले सकते हैं। यस, अलग तरीके से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि फेस टू फेस इंटरव्यू होना चाहिए करके, मैं उनको बाकी वे से भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ अगर मैंने क्वेश्चनर बनाया है तो। ओके, देन अगेन वन मोर थिंग उन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे, द क्वेश्चनर मेथड टेक्निक इज कन्वीनियंट सुटेबल फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन पर्सनल, फैमिली, सेंटिमेंटल एंड इमोशनल मैटर ऑल्सो। देखो, कभी कभार क्या होता है कि इंटरव्यू जब हम लोग लेते हैं ना, तो वी आर फीलिंग quite discomfort when we are asking them about the personal matter. ओके, लेकिन अगर मुझे उनके पर्सनल मैटर के बारे में जानना है, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड वाइल स्पीकिंग आई एम नॉट फीलिंग इट कंफर्टेबल टू आस्क देम सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगी वहां पे, उनको वो सीधा क्वेश्चनर उनके हाथ में दे दूंगी या फिर उनको मेल करूंगी और लेट देम राइट द वे दे वांट टू राइट। तो यहाँ पे ना मेरा डिस्कम्फर्ट रहेगा ना उनका डिस्कम्फर्ट रहेगा बताने के लिए मेरे सामने, isn't it? So therefore, that all kind of a sentimental matter also we can get it through the questionnaire method. And then it is very simple and the easy technique to collect the information and uniform manner. मतलब information can be collected in uniform manner. Uniform manner मतलब जो क्वेश्चन में बिल्किस को कर रही हूँ वही क्वेश्चन में आरती को ही करूंगी, वही क्वेश्चन में अनामिका को करूंगी। ओके, so what is that way here? That I would be able to collect the information in uniform manner. मैं किसी को जानबूझ के पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा करूंगी, किसी को नहीं करूंगी, so this will not going to happen. This will not going to happen here. Okay, so equally मैं सबको equally treat करूंगी वहां पे. Okay, so this is what here. Then again, what we can say, it is the suitable method when we are basically collecting a lot of information. Lot of information मतलब क्या रहता है कि अगर मुझे ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन, कभी कभार तो 100 क्वेश्चन भी रहते हैं तुरंत, अगर मुझे लिटरली 100 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं ज्यादा बात करती रहूंगी और 100 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में रहेगा नहीं हर एक रिस्पोंडेंट के लिए कि ये टोटल 100 क्वेश्चन मैंने पूछा या नहीं पूछा करके, तो वो सब दिमाग में नहीं रहेगा। इसके लिए मुझे वो क्वेश्चनर के फॉर्म में बनाना है एंड दैट वे आई नीड टू गिव इट टू द रिस्पोंडेंट। ओके, so it is also possible for me when I have to plan for the large questionnaire. Then it is convenient to the respondent also. एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू गेट। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेम जैसे कि पहले मैंने आपको बोला कि उनके उनके बारे में पूछो, उसके बाद में उनके सोशल कंडीशन के बारे में पूछो, देन इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूछो, देन अपने टॉपिक के पास आओ। सो दैट विद द स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू गेट इट थ्रू द क्वेश्चनर। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सी द लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चनर। लिमिटेशन क्या रहता है क्वेश्चनर का, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे कि इलिटरेट लोग जब रहते हैं, जिनको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं रहेगा ज्यादा। क्यों नहीं रहेगा सुटेबल? बिकॉज वो लोग खुद नहीं लिख पाएंगे वहां पे, ना खुद रीड कर पाएंगे। तो वहां पे एज ए रिस्पोंडेंट मुझे ही उनके साथ वो डिस्कस करना है और मुझे ही वो नोट डाउन करना है, मुझे रीड करना है, उसके बाद में उनको समझाना है, एंड देन ओनली दे विल गोइंग टू गिव मी आंसर। सो दिस वे this will be quite time consuming for me if my respondents are illiterate one. Okay, and then मैंने जैसे आपको बोला कि क्वेश्चनर अगर हम लोग मेल के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ कुछ चांसेस ऐसे भी रहते हैं कि कोई आंसर देता है, कोई नहीं देता है।
So that kind of a error can also happen in questionnaire. Okay. और जैसे क्वालिटी ऑफ डेटा नहीं मिलेगा, मतलब लोगों का बहुत कैजुअल अप्रोच रहता है, ये कितना बोरिंग काम है, मुझे इतना लिखने के लिए दे दिया, जान दे, जो जो दिख रहा है उसको टिक 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 करते जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ कैजुअल अप्रोच कैन आल्सो बी, वी कैन गेट इट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. हम लोगों ने भले बहुत मेहनत से वो 100 क्वेश्चन बनाए, लेकिन किसी को वो 100 क्वेश्चन रीड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा, then obviously they will not going to take it very seriously and they will not going to give me each and every answer. Okay. And then attitude of cooperation is not visible. Yes, very good. मतलब अगर आप उसको कैजुअली ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे वो इंडिकेट हो रहा है यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द रिसर्चर. And then the approach of respondent is normally rigid and restricted. They give information as per question. हाँ, मतलब वहां पे उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन थोड़ा रिजिड रहेगा. रिजिड मतलब क्या रहता है कि जो हम लोग पूछ रहे हैं ना, वो वही आंसर देंगे हम लोगों को, मतलब उसके अलावा हमें वो कुछ ज्यादा नया नहीं बताएंगे. कौन नहीं बताएंगे? रिस्पोंडेंट नहीं बताएंगे. तो वो वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है. Okay, then verification of information supplied in questionnaire is not possible. Yes, whatever respondent is saying, we really don't know. We cannot verify it whether he's saying, whether he's lying or he's saying the truth. That we cannot verify. So there are this kind of a chances also. And there is no personal touch in between the respondent and interviewer. तो जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग कोई अटैचमेंट नहीं दोनों के बीच में, वो हमारे लिए नया है और हम उनके लिए नए हैं करके. So that way there will not be any kind of a personal or emotional attachment. So they will not ready or willing to give us a quality of information also. Okay. So this way we can say, and it's not necessary like each and every respondent will be knowledgeable. मतलब जो भी आपका रिस्पोंडेंट रहेगा उसको आप जो टॉपिक बोल रहे हैं उसके बारे में पता ही रहेगा, जरूरी रहे ना. जैसे मैंने आपको बोला कि हाउस वाइफ कितना पैसा उनके पास आता है एवरी मंथ का खर्चा करने के लिए, लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट कोई कोई हाउस वाइफ ऐसे भी रहती है कि जिनके हस्बैंड उनको पैसा ही नहीं देते खर्चा करने के लिए, बट एवरीथिंग देयर हस्बैंड इज ओनली मैनेजिंग. ऐसे भी कई के घर पे रहता है. तो वहां पे टेकिंग दैट लेडी, ओके फाइन, शी इज द हाउस वाइफ, लेकिन उसके पास वो पैसा आता ही नहीं है, देन शी इज नॉट अ करेक्ट रिस्पोंडेंट फॉर अस ना. तो वो शायद हमें बराबर इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाएगी. Are you getting me? So this kind of a problem we can get it when we are planning to go ahead with the questionnaire method. Okay. और क्या बाकी है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनर. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम वैसे रहेगा जो हम लोगों ने एडवांटेजेस में देखा था, वो ऑलमोस्ट सेम है. अच्छा, क्वेश्चनर डिजाइनिंग अपना बाकी है, स्टेप 1 स्टेप 2. अच्छा, ये बहुत ज्यादा बाकी लगता है, आज नहीं हो पाएगा अपना. ओके स्टूडेंट्स, तो टिल दैट टाइम क्वेश्चनर डिजाइन कैसे करना है उसके बारे में दैट वी विल गो टू सी इट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. अच्छा, लेकिन मैं आपको ये वाला पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स पढ़ा दूंगी, कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके वाले क्वेश्चनर के. मैं आपको स्टेप समझा देती हूँ, इतना पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है. सी व्हेन यू आर प्लानिंग टू ट्रेन द क्वेश्चनर, जब आप क्वेश्चनर बनाने का प्लान करोगे ना, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि टोटल 6 स्टेप के थ्रू आप लोगों को जाना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी डिसीजन लेना पड़ेगा. सो प्रिलिमिनरी डिसीजन मतलब क्या रहेगा कि जैसे आपके रिस्पोंडेंट कौन है, मतलब व्हाट वी कैन से कि आपके रिस्पोंडेंट अगर पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास आपको लगता है कि मोबाइल रहेगा ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी बनाना है क्वेश्चनर का या आपको सॉफ्ट कॉपी भी सफिशिएंट है. सो दैट यू विल गोइंग टू प्लान. अगर आपको लगता है कि नहीं आपके रिस्पोंडेंट के पास जरूरी नहीं मोबाइल फोन रहेगा, आपको कैसे भी करके उनको हार्ड कॉपी देना ही पड़ेगा, देन यू विल डिसाइड कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी में बनाना चाहिए. ओके. आपके रिस्पोंडेंट को लगता है कि नहीं आपको उनको मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे उनको मेल सर्वे के थ्रू करना पड़ेगा, शायद ये क्वेश्चनर सेंड करना पड़ेगा. that kind of decision you will going to take it into your preliminary decision. So preliminary में क्या होगा बेसिकली कि आपको किस वे से डेटा कलेक्ट करना है. आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको उनको मेल के थ्रू क्वेश्चनर सेंड करना है, या आपको हार्ड कॉपी बनाना ही पड़ेगा. So that kind of a decision you will going to take in your first step. उसके बाद में सेकेंड रहेगा इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग.
इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग मतलब क्या रहता है कि जैसे तुम लोग चलो हाउस वाइफ के बारे में टॉपिक है और आपको पता नहीं कि हाउस वाइफ के एग्जैक्टली क्या क्या चीजों को मैनेज करती है, ओके, दैट यू रियली डोंट नो। तो आप लोग क्या करोगे, आपके मम्मी से पूछोगे, मतलब कि क्या क्या चीजों का आप मैनेज करते हो और कितना पैसा मिलता है आपके हाथ में। तो आप थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, एक छोटा सा इंटरव्यू आपकी मम्मी का ही लोगे और तभी आपको आपकी मम्मी की थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या क्वेश्चन एक्चुअली बनाने चाहिए। ओके, सो इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो जो आपके रिस्पोंडेंट रहेंगे ना, तो उसमें से आप थोड़े रिस्पोंडेंट के साथ बात करोगे और उनसे थोड़ा आइडिया लोगो, उनसे थोड़ा आइडिया लेंगे कि ठीक है उन वो लोग क्या क्या चीजों के ऊपर डिसीजन लेते हैं और उनके बेस के ऊपर आप थोड़ा क्वेश्चनर बनाओगे। सो दैट इज योर ड्राफ्टिंग क्वेश्चनर। तो आप लोगों ने फिर क्या किया, यू पीपल प्रिपेयर द क्वेश्चनर, आप लोगों ने क्वेश्चनर को ड्राफ्ट किया। तो क्वेश्चन अभी बन के तो हो चुका है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये करेक्ट है या नहीं, ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, या फिर मुझे उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, पाइलोटिंग क्वेश्चनर करोगे। पाइलोटिंग क्वेश्चनर मतलब क्या करोगे कि आप ऐसे 5-6 रिस्पोंडेंट रहेंगे, 5-6 हाउस वाइफ रहेंगे, आप उनको वो क्वेश्चनर देंगे एंड देन तभी आपको पता चलेगा कि एक एक हाउस वाइफ आपको बोलती है अच्छा ये क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, ये समझा नहीं मुझे। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा मतलब मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है, तो उनको समझने के लिए डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चनर को चेंज करोगे। तो मतलब आपने जो क्वेश्चन जो ड्राफ्ट क्वेश्चनर बनाया है उसमें कहाँ पे गड़बड़ है, दैट यू विल कम टू नो थ्रू द पाइलोटिंग क्वेश्चनर। ओके, सो चलो पाइलोटिंग क्वेश्चनर हो गया, मतलब आपको अभी आइडिया आ गया कि मेरे क्वेश्चनर में कहाँ पे क्या कमी है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, सो दैट में आप लोगों को प्रॉब्लम पता लगने के बाद में आपने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके एक प्रॉपर ऐसा फाइनल क्वेश्चनर बना दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चनर बनाने का स्टेप। समझा स्टूडेंट आपको, यस और नो, बताओ यस जल्दी। मैम। समझा या नहीं समझा, बहुत कंफ्यूजन था पहले। आप लोगों को क्या करना है समझाना कि क्वेश्चनर मुझे किन के लिए बनाना है, पहले ये प्लानिंग होना चाहिए और किस वे से मैं क्वेश्चनर को सेंड करूंगा, वो प्रिलिमिनरी डिसीजन में आता है। सेकंड होता है कि आप इनफॉर्मल इंटरव्यू लोगे, आपने अभी तो क्वेश्चन बनाए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या क्या डालना चाहिए उसके लिए आप किसी एक दो रिस्पोंडेंट से बात करोगे और तभी वो आपको मतलब एक आइडिया देगा कि हाउस वाइफ क्या क्या करता है करके। अच्छा ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा कि वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओगे। तो वो हो जाता है ड्राफ्टिंग क्वेश्चनर, फाइनल नहीं है, रफ क्वेश्चनर बनाया। वही रफ क्वेश्चनर आप लोग क्या करोगे, फिर से रिस्पोंडेंट को पूछोगे एंड तभी क्वेश्चनर पढ़ते पढ़ते रिस्पोंडेंट आपको बोलेगा नहीं ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, इसका क्या मीनिंग है। देन आपको समझेगा कि आपके क्वेश्चनर समझने में थोड़ा डिफिकल्टी जा रहा है। ओके, तो आप लोगों को जहां जहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वहां पे डिसीजन लिया, यू फ्रेम योर क्वेश्चनर इन अ प्रॉपर वे और आपने वहां पे फाइनल अपना क्वेश्चनर को बना दिया। समझा? यस मैम। ओनली वन स्टूडेंट इज गिविंग आंसर, बाकी कोई भी नहीं। यस, तुम लोग इतने आलसी होते जा रहे हो, सब सो रहे थे क्या? यस, नहीं मैम। यस मैम। अच्छा इसके लिए भी यस मैम बोला, सो रहे थे क्या? चलो फटाफट फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं। तुम लोग है ना रोल नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। कितना टाइम बोलने का रोल नंबर लिखो करके। बिल्किस इज देयर, कृतिका नहीं दिख रही है, प्लीज नेक्स्ट टाइम से रोल नंबर लिखा करो। हाँ? श्रद्धा, यस श्रद्धा। प्रेजेंट। दिव्या, यस इज देयर। अनामिका, अनामिका इज देयर। प्रिया इज देयर। प्रज्वल नहीं रहेगा। रुमान इज देयर, नो। देन रवि, रवि इज ऑल्सो नॉट देयर। रमेश नहीं है। महेश्वरी इज देयर। मनोज, यस इज देयर। अरविंद नहीं है। देन आरती, यस। आशा, यस।
मयूर, यस. मुदस्सिर नहीं है. शोएब तो नहीं रहेगा, हीरो है वो. देन कनीज इज ऑल्सो नॉट देयर. मासूमा, मासूमा इज देयर. मासूमा तेरा स्पेलिंग क्या है एक्चुअली? MASOO है क्या, या MASU है? मैम बाप रे, उसने क्या बोला मुझे नहीं समझा. सोहेल इज नॉट देयर. शिवा इज देयर. नेहा इज देयर. बालू नहीं दिख रहा है. सोनाली नॉट देयर. रेशमा, रेशमा आई है? रेशमा भी नहीं दिख रही है. No, ma'am. सुखदेव No, ma'am. ये भी नहीं है. फातिमा इज देयर. मुस्कान, मुस्कान है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, दैट्स इट. ठीक है, चलेगा चलो. ओके, देन शैल आई एंड द लेक्चर? ओके, बाय. Bye, ma'am.